A very good morning to everyone. I, Prakriti Paliwal, student of DME Media School, welcome you all to the Vibrant India series, episode 75. I also welcome all our viewers who are watching us live on DME Facebook page. The link of the same is shared in the chat box. Vibrant India series VIS is an initiative of DME Media School for celebrating 75 years of India's independence. As part of this series, we have invited inspiring personalities for online talk, interview, and interaction with our students. The invited personalities for this series are from all walks of lives and from all parts of the country. And today, we're here for the finale episode 75. And our special guest of this episode is Waterman Rajendra Singh Ji. We're honored to have you, sir. Thank you. Thank you. I would like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. Delhi Metropolitan Education DME is an A-grade premier education institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. The institute offers BBA, BA LLB, and BB LLB, and BA JMC programs. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges of the industry and creating a space for themselves with their competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school include BG Varghese Lecture Series, Peer-to-Peer FDP, International Film Festival SIFI, International Conference ICANN, Ritika Convention of Media Students, VIS Vibrant India Series, and newly added in the list is CCD, Check In for Cognition with Dean. It is my privilege to now introduce the personality of episode 75 of the VIS. Guest of the day is a personality radiating wisdom. Waterman Rajendra Singh is a water conservationist and environmentalist of international repute. He is known as Waterman of India for his outstanding work in water conservation. He runs an NGO, Tarun Bharat Sangh, which was founded in 1975. Initially, Rajendra Singh started working in the villages of Alwar and helped villagers in taking charge of water management. He trained villagers in developing rainwater storage tanks, check dams, and other time-tested and path-breaking techniques. Then, he went on expanding his work, thus benefiting farmers in hundreds of villages in the country. Rajendra Singh has been bestowed Magsaysay Award 2001 for community leadership in water harvesting and water management. He has received Jamnalal Bajaj Award 2005 for application of science and technology for rural development. In 2008, The Guardian named him amongst its list of 50 people who could save the planet. In 2015, Rajendra Singh won the Stockholm Water Prize, an award known as the Nobel Prize for Water. He is a member of National Ganga River Basin Authority and Empowered Authority for the Ganges. He is a founder member of UK-based NGO, the Flow Partnership, which aims to counter the negative effects of soil erosion and flooding. I now request the technical team to show some glimpses from his life.
you, sir, for joining us today. It is indeed an honor to host you. I now request Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to formally welcome the guest. Thank you, Prakriti. Welcome everybody to episode 75 of Vibrant India series. We launched this digital program in 2021 on August 9 on the anniversary of Quit India movement. We presented episode 50 of this program in 2022 on August 15 when India celebrated 76th Independence Day. And today we are before you with the final episode 75 of Vibrant India series. Vibrant India series is an initiative of DME Media School, Delhi Metropolitan Education. It is an online series to get inspiration from distinguished personalities. This program has been conceptualized and created by Professor Ambarish Saxena. Vibrant India series is a tribute to all those people who have made supreme sacrifices for the independence of our motherland. This program is a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, a celebration on India completing 75 years of independence. Let us have a look at the eminent personalities who have graced the VIS during the last 2 years. 8 personalities from the defense forces have participated in VIS till date. These personalities belong to the Indian Army, Air Force and BSF. These include Lieutenant General Sanjay Kulkarni, Lieutenant General Vinod Bhatia, Dr. P.K. Saxena, and its current leader Prerna Chaturvedi. 9 personalities from the education sector comprising education planning, teaching and research have participated in VIS. These include Professor Ujjwal Chaudhary, Professor K.G. Suresh, Professor Roop Rekha Verma, and Professor Srinivas Malkot from the US. 8 personalities from the journalism, broadcasting, and entertainment sector have joined the VIS. These include Dr. Ashish Kulkarni, Mr. Sunit Tandon, Mr. Sujata Madhu, and Mr. Pankaj Saxena. From the social sector, 9 personalities, including 8 women, have participated in VIS. These include Dr. Monisha Behel, Dr. Mridula Tandon, Dr. Mridula Seth, Dr. Meenu Walia, and Ms. Meenakshi Gupta. 9 personalities belong to art, theatre, and literature. These include Dr. Sachidanand Joshi, Mr. Arvind Gaur, Mr. Lakshmi Shankar Bajpayee, Mr. Aditya Arya, and Ms. Kajal Suri. 2 personalities from the field of law and human rights have graced the VIS sessions. These include Professor Manoj Kumar Sinha, Ms. Jyotika Kalra, women rights activist and member of NHRC. 4 police officers have also participated in VIS. 5 IAS officers have graced the VIS. 26 women have participated in 75 episodes of VIS. These women belong to sports, education, films, and other fields. I also want to mention of Ms. Indrani Singh, Pallavi Fauzdar, Ms. Sanchi Soni, Saloni Sacheti, Amrita Chaudhary, Meenakshi Pahuja, Vani Yadav, Parul Purohit Vas, Parvati Menon, and Professor Jyotika Ramaprasad from the US. Mr. Augustine Walid, Sufi Sayyid Azmal Nizami, Balendu Sharma Dadichi, Mr. Satish Saxena, Ganesh Falke, Himanshu Thakkar, Vipsi Kasar have also graced the session of VIS. So, today in episode 75, we have with us an inspiring personality, Waterman Rajender Singh, who have devoted
his life for water conservation and environment protection. Welcome Rajendra ji in episode Thank you. 75 of Vibrant India series. Welcome you all in Vibrant India series. Thank you. Thank you, ma'am, for listing out the galaxy of experts we have hosted till now in the VIS. I now request Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, and originator and ideator of VIS, to take the program forward. Over to you, sir. Thank you, Prakriti. So it's indeed a matter of honor for all of us that Waterman Rajendra Singh is with us. We all know about his work and the way he has passionately devoted all his life to water conservation. And thereby, I mean, all his efforts are ultimately contributing towards saving the planet as the greatest problem that we all are facing, not only in India, but other parts of the world. That's the threat that is to our planet because of the disregard to the environment and disregard to the water that we always do. Waterman Rajendra Singh is always, though he belongs to India, but then he belongs now to the entire world, and all through he is traveling from one place to another. So it was really difficult for us to get him, but ultimately we got him, and he is here with us all. So I welcome you, Rajendra ji, to spare so much time, and in this morning, early morning in Sweden, you have associated with us in Vibrant India series, and we are really jealous of you that you are sitting in such a good environment by the side of a water body, and we all are sitting in our closed rooms watching you and trying to listen to you. And as the whole format of the program goes, after this initial segment, we'll request you, Rajendra, to tell us your life journey. Though we know a lot about you, but still, if it is coming from you, that's more reliable, more authenticate, and that's more acceptable, and acceptable particularly for the younger generation, because this country and the entire world is to be saved by the younger generation only. Whatever work you have done, that has laid the foundation for much more work, which is to be taken up by the younger generation. And the audience in this session is all young people. So if you are telling them, and simultaneously the kind of challenges or problems that you faced, and how did you overcome all that, and you created your own way for the sake of mankind, that will give you some kind of inspiration to these younger lot. And that's basically the objective of this program. We started this as a 75 inspirations, because we thought when the entire country is celebrating 75 years of independence, we should do it in a different way. And since this is an educational institution, we all try to get inspiration from one another. So I thought that if I try to request to 75 people whose work matters in society. So if they are coming to the session, then obviously it will bring some motivation to the younger lot. Then that session, that segment will be followed by a few questions I will be putting up to you, wherein I will request you to elaborate certain things that you would have already spoken. And then the floor will be open to the students and the teachers who have joined in this session, in this Zoom program, which is finally be posted on YouTube. And at this hour, this is going live on Facebook. So because we have had a limitation with Zoom, so beyond that 100 number, all other people have joined on this Facebook live. So hundreds of people are listening to you, and we all are eager to listen to you. So I stop here, and I request you to please take over from here and tell us whatever you want to tell us. Thank you. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लेट होने को भी माफ किया। दोस्तों, मैं सचमुच बहुत आनंदित हूं आप सबसे बात करके। ये जो हमारी 21वीं शताब्दी है, ये 21वीं शताब्दी बहुत चैलेंजिंग है। पूरी दुनिया में इस वक्त
ड्राउट और फ्लड के कारण दुनिया उजड़ रही है। मैं अभी तक ये मानता था कि स्वीडन और फिनलैंड और हमारा भूटान, न्यूजीलैंड, ये कुछ कंट्री हैं जो सुखाड़ और बाढ़ से मुक्त हैं। लेकिन 3 दिन पहले मैं स्वीडन के एक हॉफ्सो शहर में गया और वहां मैंने देखा कि वहां भी ड्राउट एंड फ्लड आया। पहले 2 महीने बारिश नहीं होने के कारण यहाँ के किसान बैंकरप्ट हो गए और फिर उन्होंने अपना प्राइवेट जंगल, बड़े जंगल थे इन लोगों के पास, वो जंगल दे दिए और उन्होंने जंगल साफ करने के बाद जैसे ही इरेटिक रेन हुई तो फ्लड आ गया। ये पहली कहानी है मेरे जीवन में जो पिछले 50 साल के पानी के काम को करते हुए मैंने देखा कि मैं जिन देशों को ये मानता था कि वो ड्राउट एंड फ्लड फ्री हैं, वो भी अब ये ड्राउट एंड फ्लड फ्री नहीं रहे हैं। कारण ये है कि हम लोग प्रकृति के साथ जो प्यार का हमारा रिश्ता था, उस रिश्ते को भूल गए। और जब हम प्यार के रिश्ते को भूल जाते हैं, तो फिर हमारा जो सिस्टम है, सोच का, हमारे दर्शन का, हमारी दृष्टि का, वो बदलने लगता है। भारतीय पर्यावरण आस्था प्रकृति की रक्षा के लिए हमें हमेशा प्रेरित करती रहती थी और भारतीय आस्था में जो प्रकृति की रक्षा का चलन था, उस चलन के कारण भारत भी दुनिया का गुरु था प्रकृति के रक्षण और संरक्षण में। लेकिन अब भारत में भी बाढ़ और सुखाड़ की मार हम देख सकते हैं। वैसे तो भारत में बाढ़ और सुखाड़ की मार बहुत पुरानी है। त्रेता काल में राजा जनक सुखाड़ के कारण त्रस्त था, तो प्रजा ने कहा कि राजन, आप महारानी के साथ मिलके हल चलाओ तो हम सुखाड़ से बच जाएंगे। और महाराजा ने प्रजा की बात सुनकर अपनी महारानी के साथ मिलकर हल चलाया और वो जो सुखाड़ का संकट था वो मिट गया। द्वापर काल में कृष्ण जो गायों को बहुत प्यार करते थे, गौपालक थे, लेकिन वो मथुरा के पास होने के कारण कंस ने उनकी सब चीजों को लूटा था। तो उसने कहा कि इस धरती पर बाढ़ बहुत भयानक, गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ बाढ़ आई। तो कृष्ण ने भी प्रकृति का अनुकूलन करके, जैसे जैसे जनक ने प्रकृति का अनुकूलन करके अपनी मेहनत से सुखाड़ का रास्ता समाधान किया था, वैसे ही कृष्ण ने कहा कि चलो सब जितने भी गौपालक थे, ग्वाले थे, सबको गोवर्धन पर्वत पर ले जाकर बचा लिया। एक भी गाय नहीं मरी और एक भी आदमी नहीं मरा। ये जो भारत का ज्ञान था, इसको हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम और इंडियन विजडम कहते हैं। इस ज्ञान के कारण भारत दुनिया का गुरु था कि प्रकृति में यदि कभी क्रोध आया, प्रकृति को यदि गुस्सा आया और उसने कुछ उल्टा किया, तो हम अपने पसीने से, अपनी मेहनत से प्रकृति में आस्था रख के उसका समाधान ढूंढ लेते थे। लेकिन अब हमारी इस आधुनिक शिक्षा में हम केवल ड्राउट कंट्रोल, ड्राउट फ्लड, सब प्रकृति पर नियंत्रण करना चाहते हैं। प्रकृति ये नियंत्रण के लिए नहीं है, प्रकृति तो अनुकूलन के लिए है। जब इंसान प्रकृति का अनुकूलन करता है तो समस्या का उन्मूलन हो जाता है। ये जो चलन है, ये चलन मुझे मेरे गांव के एक अनपढ़ किसान ने मुझे सिखाया। जब मैं भारत सरकार की नौकरी छोड़ के जयपुर से अलवर के थानागाजी तहसील के गोपालपुरा गांव में गया, तो वो गांव बेपानी होके उजड़ गया था। उस गांव में कहीं भी कोई एक भी जवान आदमी नहीं रहता था, केवल बूढ़े लोग रहते थे और ये सब के सब रतौंधी रोग से ग्रसित थे, नाइट ब्लाइंडनेस से, क्योंकि माल न्यूट्रिशन के कारण ये सब दिक्कत उनको थी। मैं डॉक्टर था, मैंने उनका इलाज किया, ठीक हो गए। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा कि राजेंद्र, हमें तेरी दवाई और पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए पानी। हम बेपानी होकर उजड़े हैं, हमारी जिंदगी में लाचारी, बेकारी, बीमारी बेपानी होने के कारण आई है, तो तू पानी का काम कर। और मुझे मेरे उस अनपढ़ गुरु ने मुझे 2 दिन में मेरी 2 पीएचडी कंप्लीट कराई। पहली पीएचडी थी जियो हाइड्रो साइंस में। मुझे सीधा चमड़े के चरस में बैठा के, लेदर बॉक्स में बैठा के 150 फीट गहरे कुएं में नीचे उतार दिया और मुझसे कहा कि देख ले कुएं में क्या है। तो जब मुझे 5 मिनट बाद बाहर निकाला, तो मैंने मुझसे पूछा कि क्या देखा तेने कुएं में। उस कुएं में ऊपर से नीचे की तरफ सीधी कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स थे। उन कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स के कारण पानी ऊपर से नीचे की तरफ धरती में
एक वाटर बैंक बनाए हुए था, जिसको हम अंग्रेजी में एक्यूफर कहते हैं। उस एक्यूफर में जो पानी है वो डिपॉजिट रहता है, वो वहां से खत्म नहीं होता, वहां सूरज चोरी नहीं कर सकता पानी की। तो वो एक तरह का रिजर्व वाटर बैंक था। उस रिजर्व वाटर बैंक में उसने फिर पूछा कि देखो यहाँ पेड़ कैसे हैं। तो जहां पर ऐसे वाटर बैंक होते हैं, वहां लंबे पेड़ होते हैं जिन पे पत्तियां होती हैं। जहां पर वैसे वाटर बैंक नहीं होते, वहां पर झाड़ी नुमा झाड़ होते हैं और उनमें पत्तियां नहीं होते, कांटे होते हैं। तो मुझे वनस्पति से धरती का पेट जानना सिखा दिया। और मेरी पीएचडी का वैलिडेशन केवल 3 प्रोफेसरों ने नहीं किया। मेरी पीएचडी का वैलिडेशन 25 कुओं से, नेचर से मेरी पीएचडी का वैलिडेशन कराया कि देखो तुम 25 कुओं को देखो और इसका धरती का विज्ञान समझो। धरती में मुझे उन 25 कुओं में नीचे डाला उसने, और निकाला और डाला और निकाला। तो जो ये जो विद्या थी, भारतीय विद्या, ये शिक्षा नहीं थी। मांगू काका मुझे शिक्षा नहीं दे रहे थे, मुझे विद्या दे रहे थे। और वो विद्या सीधी देखी जाती है, खुद ग्रहण की जाती है। तो मेरी फर्स्ट पीएचडी जियो हाइड्रो साइंस में एक दिन में कंप्लीट हुई, और दूसरी पीएचडी नेचुरल इंजीनियरिंग में हुई। मुझे वो ऊपर पहाड़ पर ले गया, अरावली पर्वत में ये गांव है, और जहां से वो नदी का पानी आता है, उस नदी के 17 किलोमीटर लंबी यात्रा कराई। जहां पर जेंटिल स्लोप थे, वहां कहा ऐसा सीधा बांध बना दे, ऐसा सीधा। और जहां पर स्टीप स्लोप थे, वहां कहा कॉन्वेक्स डिजाइन का डैम बना दे। और जहां पर नेचुरल डिप्रेशन था, वहां का जोहड़ बना दे, अर्ध चंद्राकार कॉनकेव। तो मुझे मेरी सेकंड पीएचडी नेचुरल इंजीनियरिंग में हुई, और वो भी एक दिन की पीएचडी है। केवल 17 किलोमीटर धरती पे चल के वो मैं सीख सका कि मुझे किस तरह के टेरेन में किस तरह की वाटर बॉडीज क्रिएट करनी चाहिए, जिससे नेचर का कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो, डिस्प्लेसमेंट ना हो, और डिजास्टर से हम बच सकें। इसलिए ये जो मुझे सीख मिली, मुझे जो विद्या मिली, उसी विद्या के कारण मैं अब भारत की धरती पर 14,800 छोटे छोटे बांध, जोहर, तालाब, एनीकट, ताल, पाल, झाल, डिफरेंट मोर देन 130 टाइप ऑफ द डिजाइन, 14,800 स्ट्रक्चर बना सका। और इनके कारण 14 मरी हुई सूखी नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाकर बहा सका, जिसमें से 8 नदियां अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगानी, जाजवाली, साबी, महेश्वरा, ये राजस्थान की हैं। 2 नदियां महाराष्ट्र की हैं, महाकाली और अग्रणी नदी। एक नदी कर्नाटक की है, ईचन हल्ला। इस तरह से देश भर में 14 मरी हुई सूखी नदियों को पिछले 42 सालों के कामों में जिंदा कर सका। मुझे अब ये लगा कि अभी तक मुझे धरती पर फावड़ा चलाना था, तो मैंने अपने धरती पर फावड़ा चलाकर धरती पर जो पानी था उसको धरती के पेट में डालने का काम किया। अब मेरा काम बदल रहा है। अब मैं लोगों के दिमाग पर फावड़ा चला रहा हूं। इसलिए मैंने दुनिया का एक पीपल्स ड्राउट एंड फ्लड वर्ल्ड कमीशन बना के दुनिया में जहां जहां बाढ़ सुखाड़ आ रही है, वहां के लोगों के अंदर और वहां की सरकारों के बीच में चेतना जगाकर उनको पानी के काम में लगा रहा हूं, जिससे ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच सके। तीसरी विश्व युद्ध से बचाने का काम हमारा पीपल्स वर्ल्ड कमीशन ड्राउट एंड फ्लड कर रहा है। यदि दुनिया में पानी का काम नहीं हुआ, ये ड्राउट और फ्लड बढ़ता रहा, तो दुनिया उजड़ेगी और उजड़ के दूसरे देशों में जाएगी। और जब दूसरे देशों में जाएगी तो वहां के लोग उनको हेट करेंगे। तो पहले एक जमाना था जब केवल वॉर रिफ्यूजी होते थे। एक दूसरे देश में जब वॉर होता था तो रिफ्यूजी होकर दूसरे देशों में जाते थे। आजकल जो जमाना है वो क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज का है। अब पूरी दुनिया में अफ्रीका से और सेंट्रल वेस्टर्न एशिया से जो रिफ्यूजीज बन के जा रहे हैं, उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलते हैं। तो हमें इन क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज से यदि अपनी दुनिया को हरा भरा बना के रखना है, तो फिर प्रकृति को प्यार करना पड़ेगा और धरती पर हरियाली बढ़ानी पड़ेगी। अभिषेक जी, आज मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप कुछ सवाल पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। राजेंद्र जी, जो आपने राजस्थान में जो अपना काम शुरू किया और जैसा अभी आपने बताया कि आपने
140 तरह की वाटर बॉडीज की पहचान की। लेकिन अगर आप सामान्य तरीके से जो आज की यंगर जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको बताना चाहेंगे कि वो किस तरह की वाटर बॉडीज हैं मुख्य रूप से, और जिनको संरक्षित करने में या जिनमें किसी भी तरह का योगदान ये युवा पीढ़ी दे सकती है, जिससे कि इनमें इस तरह की चेतना जागे कि ये भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाए। देखिए, भारत जल संरक्षण के मामले में पूरी दुनिया का गुरु था, अभिषेक जी। आप जानते हैं, जैसलमेर जैसा शहर जहां दुनिया में सबसे कम बारिश होती थी, वो हमारे कभी किसी जमाने में डीसी वाशिंगटन से भी ज्यादा बड़ा बिजनेस सेंटर था। पूरा काबुल, कंधार, काजिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार तक की जो बिजनेस थी, ट्रेडिंग थी, वो जैसलमेर के रास्ते होती थी। आप कल्पना करिए कि उस रास्ते से जाने वाले कैमल्स और उस रास्ते से ट्रेडर्स का भारत में पानी का इंतजाम कैसे किया था, जहां पर कुल 200 mm 20 सेंटीमीटर पूरे साल में इससे भी कम बारिश होती थी। उसने अपने रास्ते जैसलमेर को कैसे पानी पिलाया। तो हम लोगों ने जहां पर मोरम मिट्टी थी वहां पर खड़ीन बनाए, और जहां पर हमें थोड़ी रेतीली मिट्टी थी और नीचे हार्ड रॉक थी, वहां पर हमने लेक्स बनाए। जैसे जसेरी लेक, आपको अभी भी हमारी पार्लियामेंट के उसमें जब जाएंगे गलियारे में, तो जसेरी लेक राजस्थान का दिखेगा। छोटा सा 25 बीघे का लेक है, लेकिन पूरे इलाके को कभी जब से बना है 700 सालों में आज तक नहीं सूखा। किस लिए नहीं सूखा? क्योंकि उसकी दक्षिण दिशा में बड़े बड़े पेड़ थे, तो एवोपरेशन कंट्रोल हुआ, और नीचे उसमें रॉक थी जो नीचे पानी नहीं गया, तो हमेशा उसमें पानी बना रहता है। इसको हम ताल कहते हैं, पाल कहते हैं। ये जो ताल और पाल होती है, पाल वो होती है जो मिट्टी की बनी होती है, ऊपर के पानी को रोक लेती है। ताल वो होती है जिसमें पानी नीचे जमा रहता है, और वो हमेशा लोगों के पीने के काम में आता है। और हमारे यहाँ बीकानेर में उसको सरोवर भी कहते हैं। कुछ सरोवर होते हैं, कुछ वर होते हैं। तो ये जो डिफरेंट तरह की राजस्थान में जोहड़ होते हैं, जोहड़ वो होते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं, ऊपर से पानी को रोकते हैं। बावड़ी होती हैं, बावड़ी वो होती हैं जिनको स्टेप वेल कहते हैं, जिनमें नीचे तक जो चोए का पानी होता था, उस पानी को निकाल के हम अपना जीवन चलाते थे, ये स्टेप वेल। और राजस्थान में मैं समझता हूं कि सैकड़ों तरह की पुरानी जल संरचनाएं हैं। कहीं कहीं पर हम लोग चौके बनाते थे, कहीं पर हम ताल बनाते थे, कहीं पाल बनाते थे, कहीं झाल बनाते थे। ये जो झाल का नियम था वो ये था कि एक लेवल तक पानी रुकेगा, एक लेवल तक पानी रुकने के बाद फिर उसके ऊपर नीचे जाएगा, फिर नीचे रुकेगा। तो ऊपर से लेके नीचे तक हम कहीं नाला बंद बनाते थे, कहीं गली प्लगिंग करते थे, जो गलियां पट गई थी उनको रोकने का काम करते थे। तो ये सैकड़ों तरह की जल संरचनाओं का भारत में और खासकर राजस्थान में ज्ञान विज्ञान था। उसी से भारत अभी तक लंबे समय तक पानीदार था। भारत पिछले 30-40 सालों में बेपानी होना शुरू हुआ। 30-40 सालों में पानी की क्राइसिस शुरू हुई, और अब तो हमारा जो भूजल का भंडार है वो 62% ओवरड्राफ्ट हो रहा है। हमारी नदियां नाले बन रही हैं। हम अपने अमृत महोत्सव में हमारी नदियों में अमृत बहे, हम ऐसा सपना देखते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं। हमारा सच्चा अमृत महोत्सव होगा जब भारत की नदियों में अमृत बहेगा। तो ये काम महाराष्ट्र सरकार ने अभी हमारे साथ मिलकर अपनी नदियों को अमृत वाहिनी बनाने का शुरू किया है। ऐसे ही पूरे भारत में ये काम शुरू हो, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि जो तालाब, जो जल संरचनाएं हैं, उन जल संरचनाओं के पानी से हमारी नदियों का जो जल प्रवाह है वो बढ़ता और बनता है। हमारी नदियों में जब तक पानी रहता है, जब तक हमारी जल संरचनाओं में पानी रहता है। जब हमारी जल संरचनाएं सूख जाती हैं तो हमारी नदियां भी सूख जाती हैं। इसलिए भारत की छोटी 2/3 नदियां
जो छोटी नदियां हैं वो सूख गई हैं, मर गई हैं, और जो हमारी 1/3 नदियां हैं वो वो पीने के लायक पानी और नहाने के लायक पानी नहीं बहती, उनमें गंदा पानी बह रहा है। हम अपने अमृत महोत्सव को अमृत वाहिनी नदियों के साथ बनाना चाहते हैं। ये हमारी कल्पना और ये हमारा सपना है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने हमारे साथ मिलके की है। 109 नदियों को अमृत वाहिनी बनाने के लिए हम लोगों की तैयारी महाराष्ट्र में करवा रहे हैं। लेकिन राजेंद्र जी, ये आपने महाराष्ट्र की बात की, लेकिन भारत तो बहुत बड़ा है, तो या तो हर राज्य में महाराष्ट्र की तरह के प्रयास हो और आपके पास जो विशेषज्ञता है उसका इस्तेमाल किया जाए, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बने। नहीं तो ये काम इतना बड़ा और इतना लंबा है कि ये हम कैसे कर पाएंगे। ठीक कह रहे हो अभिषेक। देखो, यदि हम राजेंद्र भारत को राजेंद्र राजेंद्र जी, मैं आपको क्षमा करेंगे, मेरा नाम अम्बरीश है। अम्बरीश है। जी। सॉरी सॉरी अम्बरीश। मैंने जब वो नाम बोल रही थी बहन जी तो ऐसा सुना कि अभिषेक है। अम्बरीश जी, मुझे आपने जो कहा ये बिल्कुल ठीक बात है कि यदि भारत को एक शुद्ध पेयजल की सुरक्षा करनी है तो पूरे भारत में हमें जो वर्षा का जल है उसको गंदा ना होने दिया जाए। वर्षा जल को अलग रखें, गंदे जल को अलग रखें, और धरती पर ऐसी व्यवस्था करें कि वर्षा जल ठीक से जहां हमें धरती के ऊपर पीने के लिए चाहिए वहां रखें, जहां हमें भूजल के भंडारों को पुनर्जीवित करना है वहां पुनर्जीवित करें। लेकिन ये काम भारत सरकार और भारत की जनता दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। भारत सरकार को इसके लिए इनिशिएट करना होगा। ये जो हर घर में नल और हर घर में जल की बात है, ये तो प्राइवेट कंपनियों की प्लास्टिक की बिक्री करने का एक बड़ा काम दिखता है। तो उनकी बड़ी बिक्री करवानी है तो इसलिए ये हर घर में नल, हर घर में जल। अरे भैया, तुम जल उपलब्ध करा दो, लोग अपने जल का उपयोग खुद करना सीख जाएंगे। और जल का उपलब्ध कराने के लिए वर्षा का जल भारत में हर कोने में बरसता है। इसीलिए मैंने आपको जैसलमेर का उदाहरण सबसे पहले दिया कि आखिर जैसलमेर शहर किस तरह से दुनिया के सबसे कम बारिश वाले होने के बावजूद 1500 ऊंट जो रोजाना उस रास्ते से काबुल, कंधार, काजिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार के व्यापार के लिए निकलते थे, उनको पानी पिलाता था ना। तब तो हवाई जहाज नहीं थे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं अम्बरीश भाई कि हम भारत को एक अच्छा देश, पानीदार देश बनाना चाहते हैं। हमें ये जो वर्षा की बूंदें मिली हैं, इन बूंदों को प्यार से और सम्मान से सहेजना चाहिए। आज हमें जरूरत है जल को समझने की और समझकर सहेजने की, और फिर सबको समझाने की। जैसे आज आप समझा रहे हैं अपने विद्यार्थियों को और अपनी फैकल्टी को, फिर वो समझाने का दौर होता है। उससे ही हम भारत को फिर से प्रकृति की पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति की आस्था में फिर दुनिया का गुरु बन सकते हैं। और राजेश जी, अब तो आप काफी समय से विश्व के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, और जो आपने ये वर्ल्ड कमीशन बनाया है तो इसके माध्यम से आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने अपने देशों में जो भी पानी की समस्या है, जल की समस्या है, उसका निवारण करें। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि हमारी भारत में जो जिस तरह की समस्याएं हैं जल को लेके, वो जो विश्व के जो पश्चिमी देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनसे किस तरह से अलग है? देखो, विश्व के जिनको विकसित राष्ट्र कहते हैं, उनको एक तो उनके पास पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन भारत के मुकाबले थोड़ा कम है, और उनके पास प्राकृतिक जंगल, धरती और वर्षा का जल और पानी और लेक्स और पॉन्ड्स एंड रिवर्स बहुत है। और उन्होंने, उनकी सारी नदियां हमसे भी ज्यादा पोल्यूट हो गई थी 150 साल पहले। जो आज हमारी नदियों की हालत है, वैसी हालत उनकी 150 साल पहले थी। लेकिन इन्होंने 150 सालों में अपनी नदियों को ठीक रखने का पूरा एक पुख्ता इंतजाम कर लिया। मैंने पिछले 9-10 सालों में 127 देशों की यात्रा की है।
मुझे 127 देश के लोगों ने बुलाया और मैं उनके यहाँ गया, उनको मदद की, उनको समझाया। हमारी सरकार को हमारे से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमसे वो पूछती नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारी सरकार है। हमारी सरकार पूछे ना पूछे, हमें तो अपने देश के लिए करना ही है। आखिर मेरा देश है, मेरी आत्मा तो वही है, वही बसती है। और हमारी हमारी सरकार है, हमने ही अपनी सरकार बनाई है, इसलिए किसी और की तो है नहीं। तो उनको नहीं जरूरत होती तो नहीं हो, हमें इससे क्या लेना। हमें तो ये है कि हमें जो समय मिले उसमें हम दुनिया के लिए अच्छा कर सकें, क्योंकि हम दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम मानते हैं। हमारे लिए जय जगत और वसुदेव कुटुंबकम, ये दोनों हमारे लिए जीवन के सिद्धांत हैं। तो यदि हम पूरी दुनिया को अपना अपना मानते हैं, एक मानते हैं, तो फिर पूरी दुनिया में जहाँ के लोग हमसे जानना चाहते हैं, जहाँ के लोग हमसे सीखना चाहते हैं, जहाँ के लोग हमें बुला के सम्मानजनक तरीके से सब चीजों को करना चाहते हैं, तो हम अपनी दुनिया मानकर उनको जाके सिखाते हैं। 127 देशों में मैंने देखा कि लोग बहुत गंभीर हैं अब अपने इस भावी जलवायु परिवर्तन के संकट से। उनको अंदाज हो गया है कि 21st सेंचुरी हमारी जलवायु परिवर्तन की सेंचुरी है, जलवायु परिवर्तन के संकट की सेंचुरी है, और इससे अभी वक्त है बचने का। तो इन्होंने अपनी नदियों को बिल्कुल ठीक कर लिया है, इनकी लेक बिल्कुल साफ है। अभी मैं उर्लिका की लेक के पास बैठा हूं। अब आप देखिए जरा, चारों तरफ पानी में जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी नाइट्रेट कंटेंट वगैरह कहीं से आता नहीं, पर प्रकृति में तो होता ही है। उसको ऑब्जर्व, उसको शोषित करने वाली चारों तरफ वनस्पति है। इस लेक के चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ आच्छादित है, और पानी ऐसा साफ है कि उठा के आप लोग आचमन कर सकते हैं, पी सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो इन्होंने ना केवल टेक्नोलॉजी यूज की है, इन्होंने प्रकृति को भी उपयोग किया है कि हम अपनी लेक्स, पॉन्ड्स, झील और रिवर्स को कैसे साफ रख सकते हैं। इनकी रिवर्स के किनारे पर वो ये सब वनस्पति हैं, और इनकी लेक्स के किनारे पर वनस्पति है। हमने अपनी लेक के, नदियों के किनारे बिल्कुल साफ कर दिए हैं, बिल्कुल मिट्टी, और वो नदियां जब बाढ़ आती है तो मिट्टी को बहा के नीचे ले आती है, तो ऊपर से जब मिट्टी बह जाती है तो जहां से मिट्टी बहती है वहां सुखाड़ आ जाता है। जी, यहाँ पे राजेंद्र जी एक चीज मुझे याद आती है जो आपने कहा कि हमारे देश में तो जितनी नदियां हैं, खासतौर से जो शहरों से होके गुजरती हैं, वहां तो उनके किनारे हमने बांध दिए हैं, सीमेंटेड कर दिए हैं, और वो टूरिस्ट के लिए कर दिया कि यहाँ आके बैठे। तो जो आप कह रहे हैं वो एक तरह से उसके बिल्कुल विपरीत आचरण किया है हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं आपको अमरीश भाई इतना बता दूं कि मैंने दुनिया में जितने ये देश देखे हैं, उन्होंने अपनी नदियों को इस तरह से नहीं बांधा जैसे हम बांध रहे हैं। हम रिवर व्यू, फ्रंट व्यू डेवलपमेंट के नाम पर जो कर रहे हैं, उससे हमारा खर्चा बढ़ रहा है, और जो नदी का फ्लो है, उस नदी के प्राकृतिक फ्लो में हम अवरोध बन रहे हैं। हमें यदि नदियों को अच्छा बनाना है, तो नदियां प्राकृतिक हैं, इनको प्राकृतिक वनस्पतियों से आच्छादित करने की जरूरत है। हमें इस संकट का समाधान प्रकृति में दिखता है। इस संकट का समाधान हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है, उसमें इसका सॉल्यूशन नहीं है। आज हमारी जो साइंस है वो सेंसलेस हो गई है, और जो तकनीक और इंजीनियरिंग है वो कॉन्शियसनेस एंड कंसर्नलेस हो गई है। हमारी टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में कॉन्शियसनेस नहीं बची है, कंसर्न नहीं रहा है। इसलिए हमें दोबारा से जिस विज्ञान को हम अध्यात्म विज्ञान कहते थे, वो विज्ञान विद सेंस होता था, वो साइंस विद सेंस थी, वो साइंस विद कॉमन सेंस थी, वो साइंस विद ह्यूमन सेंस एंड नेचर सेंस थी। उस साइंस में नेचर और ह्यूमन का, दोनों का इक्वल रेस्पेक्ट था। इसलिए वो जो साइंस थी वो साइंस विद सेंस थी, वो साइंस विद कॉमन सेंस थी। और जो हमारी इंजीनियरिंग थी वो विद कॉन्शियसनेस एंड कंसर्न थी। हमें लगता है उसकी जरूरत है हमारे देश को आज। उसी से हम दुनिया के फिर से जो हम बनना चाहते हैं, जो हम बोल रहे हैं कि हम दुनिया के गुरु बनेंगे, तो हम दुनिया के गुरु भैया उत्सवों से और आरती से नहीं बन सकते।
केवल आरती उत्सव करके दुनिया के गुरु नहीं हो सकते हैं। हमें तो दुनिया के गुरु बनने का जो हमारा अपना विज्ञान है, जो हमारी अपनी अपनी आध्यात्मिक वैज्ञानिक समझ है, उस भारतीय ज्ञान तंत्र से दुनिया के गुरु बनेंगे। जी। राजेश जी, बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं। यश जोशी हमारे छात्र हैं, उनका पूछना है कि आपके क्या कंसर्न है अबाउट ड्रिंकिंग वाटर इन द ड्राउट एरिया, क्योंकि इसका कहना है कि जो वो दुनिया में जो ड्रिंकेबल वाटर है वो सिर्फ 1.2% वाटर ही ड्रिंकेबल है। तो जो ड्राउट एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर को लेके आप क्या बता? देखिए, ये जो ड्राउट एरियाज हैं, इनमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए सबसे पहला जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो ये जो वर्षा का जल है, जो वर्षा होती है, पूरी दुनिया में वर्षा होती है, ऐसा नहीं है कि वर्षा नहीं होती। तो सबसे पहला कंसर्न है कि उस वर्षा के जल को केवल हार्वेस्ट ना करें, कंजर्व करें, कंजर्व विद सॉइल। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्व होगा तो सॉइल में मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर जो है वो ग्रीनरी को बढ़ाएगा, और वो जो ग्रीनरी है वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके हमारे एटमॉस्फेयर को हेल्दी बनाएगी, और फिर वहां और अच्छी बारिश होने लगेगी, जैसे मेरे इलाके में होने लगी है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे ड्राउट प्रोन एरिया हैं, भारत के, राजस्थान के, दुनिया के, उन सब में मैं लोगों के साथ बात करके उनका जो रियलाइजेशन है और इंटरलाइजेशन है, उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं कि नेचर ने हमारी लाइफ के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन हमारी ग्रीड के लिए कुछ नहीं दिया। नेचर कैन फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन, बट दिस नेचर कांट फुलफिल द ग्रीड ऑफ एनीवन। ये एक भी आदमी का लालच पूरा नहीं कर सकती, ये हम सबकी जरूरत पूरी कर सकती है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त, जहां जहां फ्लड है और ड्राउट है, वो पानी के साथ जरा प्यार करना शुरू करें। ये पानी उनकी ग्रीड के लिए ये केवल कॉमोडिटी नहीं है, ये हमारी लाइफ है, ये हमारी लाइवलीहुड है, और ये हमारी डिग्निटी है। तुम जानते हो कि भारतीय लोग नदियों के किनारे जाके पूरा अध्यात्म ज्ञान लेते थे, तो वो हमारी डिग्निटी थी। हम अपना पूरा आध्यात्मिक ज्ञान नदियों से, पानी के पास जाकर लेते थे। लेकिन ये जो हमारा वाटर लाइफ एंड लाइवलीहुड एंड डिग्निटी है, उसके प्रति आज हमारा रिश्ता बदल गया है, और ये रिश्ता कमोडिटी की तरह हो गया है। अब एक वाटर मार्केट आ रहा है, वाटर बिजनेस इतना बड़ा हो गया है। तो ये जब हम वाटर को केवल मार्केट की तरह देखते हैं, तो फिर हमारा जो पानी के साथ वो अपनेपन का रिश्ता है, उस पानी को जिसको हम लाइफ, लाइवलीहुड और डिग्निटी कहते हैं, वो रिश्ता बदल जाता है। तो मैं पूरी दुनिया में एवरी एग्रो इकोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करके, ये जो हमारी भू सांस्कृतिक विविधता है, पूरी दुनिया भारत जैसी नहीं है, सब जगह अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग तरह से देखने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। तो उनकी जो जियो कल्चर और उनकी जो एग्रो इकोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करके, उसको समझ के, उसको जान के, फिर उनके साथ इसके सॉल्यूशन बताता हूँ। जी। राजेश जी, ये शुभी हमारी छात्रा है, उसका सवाल है कि आपने जब काम शुरू किया तो और अभी भी जो काम कर रहे हैं, उसमें किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहली चुनौती होती है सरकार। जब मैंने पहला बांध बनाया गोपालपुरा में, तो हमारे राजस्थान सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने मुझे पहला नोटिस दिया, अंडर द लाइट ऑफ द इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 एंड द सेक्शन 55 एंड सेक्शन 58, दो सेक्शन मुझ पे लगा के उन्होंने कहा कि आप ये जो पानी है, ये हमारी सरकार का है, आप इस पानी को नहीं रोक सकते। मैंने कहा, भाई तुम्हारी सरकार ने तो ये पानी नहीं बनाया है, ये जो पानी है ये तो बारिश का पानी है, और बारिश का पानी जिन लोगों की जमीन पर ये पानी बरसा है, ये उनका पानी है।
तो जिनकी जमीन पर वर्षा है उनको राइट है अपने पानी को कंजर्व करने का। तो मैंने सरकार की कोई नदी नहीं रोकी, मैंने सरकार का कोई नाला नहीं रोका, मैंने तो अपने इलाके के किसानों की जमीन पर जो पानी बरसा उस पानी को इकट्ठा करके एक बांध, मेवालों का बांध बनाया और चौंतरे वाला जोहड़ बनाया था गोपालपुरा में। दोनों को लेकर सरकार ने चुनौती खड़ी की। खैर, फॉर्चुनेटली सरकार को समझ में आ गया कि हाँ, ये पानी तो उनका है जिनकी जमीन पे बरसा है। इसलिए मुझे कभी सरकार ने, मेरे ऊपर 377 मुकदमे हुए, लेकिन मुझे सरकार कभी जेल में नहीं डाल पाई, कभी पुलिस मेरे दरवाजे पे नहीं गई, क्योंकि मैं जो काम कर रहा था वो अपने लिए नहीं कर रहा था। जैसे ही मुझे कोई जाता था ये नोटिस, मैं उनको जवाब दे देता था कि हाँ, ये काम मैंने किया, लेकिन ये काम मैंने अपने लिए नहीं किया है, मैंने ये देश के लिए किया है। इस काम का मालिक मैं नहीं हूँ, इस काम के मालिक वो लोग हैं जिनके लिए पानी का काम हुआ। इसलिए ये जो पानी का काम है, ये पानी का काम हम सब लोगों के लिए सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन द्वारा कर रहे हैं। और ये जो सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन है, इससे ये दुनिया में जहां जहां ये काम हुए हैं, ये दुनिया पानीदार बन रही है। थैंक यू सर। प्रकृति पालीवाल एक स्टूडेंट है। प्रकृति, आप अपना सवाल पूछो। Hello, sir. Good afternoon. Hmm. Sir, your comment earlier on disasters that have been happening in Himachal Pradesh. Sir, is there still a way to go back for that state, or will it be worse? आई थिंक ये जो हिमाचल का डिजास्टर है, और ये जो पहाड़ पे भी अब बाढ़ आने लगी है, और पहाड़ पे पहले बाढ़ नहीं आती थी, अब पहाड़ पर ये जो नए डिजास्टर हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि हमने ये द न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट विद द displacement of our wisdom and displacement of our knowledge system. So uh, what we are doing in the mountains and hills, we are creating a lot of tunnels and lot of roads, and the new development creating a destruction and creating a displacement and creating a finally disaster. So ये जो आपका हिमाचल का डिजास्टर है, ये हिमाचल का डिजास्टर हमारे विकास का विनाश है। हमारे विकास में की शुरुआत विस्थापन से होती है, बिगाड़ करता है, और फिर इस तरह का ड्राउट एंड फ्लड पूरी दुनिया में बढ़ता है। तो हमें ये देखना होगा, प्रकृति, तुम्हारा जितना सुंदर नाम है प्रकृति, हमें पूरी दुनिया को, प्रकृति को प्यार और सम्मान करना पड़ेगा। जब हमारा प्रकृति से रेस्पेक्ट होगा और प्रकृति को हम प्यार और सम्मान से बचाना शुरू करेंगे, तब प्रकृति हमें बचाएगी। आज हम प्रकृति का गुस्सा बढ़ा रहे हैं। ये जो हिमाचल में हुआ, ये प्रकृति का गुस्सा है। दिस इज द एंगरनेस ऑफ नेचर। ये जो एंगरनेस ऑफ नेचर है, ये इसलिए हुई कि हमने बहुत सारी टनल्स और बहुत सारे रोड्स ऐसे बनाए हैं जिसमें प्रकृति का प्यार और सम्मान नहीं था। यदि हम प्रकृति का प्यार और सम्मान करके बनाते, तो ऐसा विनाश हमारे हिमाचल में नहीं होता। यहाँ स्वीडन में ऐसा विनाश नहीं हुआ, फिनलैंड में ऐसा विनाश कभी नहीं हुआ। जी। और Yes. कोई छात्र या कोई टीचर फैकल्टी मेंबर अगर सवाल पूछना चाहता है, तो आप प्लीज ऑन कैमरा आ सकते हैं, तो ऑन कैमरा आइए, सवाल पूछिए या चैट बॉक्स में अपना सवाल डालिए। Hello, sir. My name is Shubhi. Sir, what do you have to say about the ever increasing number of artificial water bodies? Will they be only normal type of water bodies in future? All artificial water bodies, if we are creating with the respect of hydroecological diversity, if we are creating with the respect of the diversity of hydroclimatic ecology, so that water body merge in nature, and they same natural water bodies they made.
if we are creating the water body only for the decided by the AC room in engineering or our any politician, MLA or MP, they don't understand where we can create the water body. So that water body creating a disaster, because the water body need a very site specific uh, uh, and that water body merge in this nature. हमें ऐसी जल संरचनाओं का निर्माण करने की जरूरत होती है जो प्रकृति में अपने आप को विलीन कर ले। वो वाटर बॉडी सस्टेनेबल होती हैं, वो वाटर बॉडी सनातन होती हैं। सनातन का मतलब है सदैव नित्य नूतन निर्माण करना, सदैव निर्माण करते हुए कभी उसका अंत नहीं होना, कभी उसका आदि नहीं होना। सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण, चरे वेति आदि अनंतः। ना उसका आदि है ना अनंत है, वो चलता रहता है। तो उसको मैं सनातन विकास कहता हूँ, उसको मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता हूँ। तो हमें आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो ऐसी वाटर बॉडी बनानी पड़ेंगी, आर्टिफिशियल वाटर बॉडी, जो अपने आप को नेचर के साथ मर्ज कर सके। मैंने सारी वाटर बॉडी जितनी बोली हैं 14,800 वो ऐसी ही बनाई हैं जो प्रकृति में, प्रकृति की जो ऊर्जा है उसके साथ अपने को बना के हमारी जरूरतों को पूरी कर सके। ये हर्षित कुमार का सवाल है राजेंद्र जी। इन्होंने कहा है कि आज के टाइम में लोग ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेकर गवर्नमेंट पर डिपेंड है, एक सिस्टम पर डिपेंडेंट है। तो सवाल इनका समझ नहीं आया। मतलब उनका कहना है कि लोग सरकार की जिम्मेदारी की इन्होंने से संबंधित बात की है और लोगों की कितनी जिम्मेदारी है इसकी बात की। मैं इनका सवाल हर्षित का समझ गया हूँ। जी, हाँ, ऐसा हो गया है कि जी। आज अब लोग सरकार की तरफ देखते हैं क्योंकि सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया है। ये लोगों की गलती नहीं है, ये सरकार की है। जब सरकार कह देती है कि ये वर्षा का पानी भी मेरा है, आप मुझसे बिना पूछे वर्षा का पानी नहीं रोक सकते, तो वो राजेंद्र सिंह जैसा पागल आदमी तो रोक सकता है, लेकिन सब कोई किसी क्यों जाएगा, ऐसे रिस्क क्यों लेगा कोई? तो जब सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं, सरकार ने जब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो फिर लोग सरकार की तरफ ही देखेंगे। तो ये लोगों की गलती नहीं है, ये सरकारों की गलती रही है कि उन्होंने अपने ऊपर डिपेंडेबिलिटी बनाई, क्योंकि ये जो राजनेता हैं ये जानते हैं कि हमें लोग जब ही वोट देंगे जब हम इनको अपना गुलाम बना के रखेंगे, हम अपने अधीन बना के रखेंगे। तो सरकारों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि अब समाज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भूल गया। समाज अब केवल राइट की डिमांड करता है। सुना है तो हर घर में नल, नल में जल। अरे भाई, तुम हर घर में नल जल में कहां से ला दोगे? तुम्हारे पास जल कहाँ है? मुझे बता दो कि तुम कैसे कहां से ला दोगे? अरे जब तक लोगों को तैयार नहीं करोगे, जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी को जब तक आप उन्हें रियलाइज नहीं कराओगे, तब तक तुम उनको कैसे पानी पिला दोगे? पानी तो उसको जरूरत है, तो उसको पीना पड़ेगा ना, उसको तैयार करना पड़ेगा, उसको तैयार नहीं करेंगे ये। जी जी। अभिषेक का सवाल है राजेंद्र जी, ये कहना चाहते हैं कि what do you think about the future of water conservation in India and what steps do you consider important to achieve sustainable water management? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, भारत में मुझे लगता है कि लोग पानी के बारे में सोचते हैं, पर ये जो हमारे कानून हैं, ये कानून उनकी सोच के लिए हमेशा हर्डल पैदा करते हैं। और फिर जो सरकार जिस तरह के प्रोजेक्ट लेके आती है, उन सारे प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ का बजट है और उसमें वो लोगों को केवल सरकार की तरफ देखने वाला बना देती है। सरकार को यदि काम करना है तो लोगों को साथ लेके करना चाहिए ना। लोगों के साथ प्लानिंग हो, लोगों के साथ लोग काम करें तो ये अच्छा होगा। मुझे होप है, वी हैव सम सीड ऑफ होप। मुझे आशा है और मैं तो आशावादी हूं। आप जानते हैं भाई कि भारत के युवा लोग
अब ज्यादा तेजी से अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के सपने देख रहे हैं। They see the dream for better जी, common future. जी, उन सपनों में ये भी सपना होगा कि युवा लोग आगे आके कहेंगे कि नो नो नो, दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज आवर राइट, दिस जी, वाटर कम फ्रॉम नेचर, हम्म, दिस वाटर नॉट क्रिएटेड बाय एनी गवर्नमेंट। हम्म, ये कहने के लिए हमारे देश का युवा तैयार होगा तो हम्म, इस स्थिति जो बिगड़ रही है उसको बेहतर जी, बना लेगा। जी। दिस इज माय राजेश जी, सीड ऑफ। जी, राजेश जी, मोहम्मद अनस का एक सवाल है, बल्कि दो सवाल इसमें दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक तो वो ये कह रहे हैं कि व्हाट कैन वी डू टू कंजर्व वाटर अपार्ट फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और दूसरा उनका कहना है कि जो प्लांटिंग ट्रीज, वेदर द प्लांटिंग ट्रीज हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यस, गुड। ये देखो, पानी के लिए केवल हार्वेस्टिंग इलाज नहीं है। वन हैंड कंजर्वेशन ऑफ द रेन्स एंड अदर हैंड डिसिप्लिन यूज ऑफ वाटर। वी हैव द स्किल ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। हमारे अंदर जो पानी का, कम पानी में ज्यादा उत्पादन करना, कम पानी में अपने जीवन को ज्यादा आनंदमयी बनाना, हमारे जीवन में कम पानी से कैसे आनंद आ सकता है। तो एक तरफ कंजर्वेशन होगी और दूसरी तरफ स्किल डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर होगी। उसके लिए आपको एक वाटर लिटरेसी की ड्राइव लेनी पड़ेगी। दिस कंट्री नीड ए वाटर लिटरेसी मूवमेंट। सो ये जो वाटर लिटरेसी मूवमेंट है उसमें से ये दोनों काम साइमल्टेनियसली चलेंगे। और देखो, ये जो पानी है ना, इस पानी का बाप है जंगल और पानी की माँ है नदियां। तो जब तक ये माँ बाप दोनों स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि हम अपने बाप जंगल को, पेड़ पौधों को, घास को, हरियाली को और अपनी माँ नदियों को, जी, पहाड़ों की हरियाली और नदियों की पवित्रता, यही है हमारे जीवन का सार। जी, जी, जी। सजल मिश्रा, राजेंद्र जी सवाल पूछना चाहती हैं। सजल, सवाल पूछो। वाटर क्राइसिस को लेके कौन सी कंट्री बेस्ट काम कर रही है, हम किसको लुकअप करें? वाटर साइकिल के बारे में जो सबसे अच्छा काम मैं देख रहा हूँ वो स्वीडन में है और फिनलैंड में है और हमारा जो भूटान में है, न्यूजीलैंड में है। ये कुछ नेचर का जो वाटर साइकिल है उसको ठीक रखने के लिए ये लोग अच्छा काम कर रही हैं और ये पानी के प्रति ज्यादा जागरूक हैं। और कुछ छोटे मोटे काम भारत में भी छोटी मोटी जगह पर हो रहे हैं। जैसे राजस्थान के लोगों ने वाटर साइकिल के द्वारा वाटर को रिचार्ज करके अपनी जमीन को पानीदार बना लिया। नदी जो सूख गई थी वो पुनर्जीवित हो गई। तो कुछ कुछ भारत में भी हो रहा है अच्छे काम और कुछ कुछ बहुत सारे देशों में भी ये काम हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान जैसे जो स्टेट है उसमें 700 प्लस डैम्स क्रिएट होते हैं और लगभग 8 मिलियन से ज्यादा क्यूबिक मीटर जो पानी है वो हर साल कलेक्ट किया जाता है। उसके बावजूद भी लाइक रिवर्स और कैनाल्स में इतना डेवलपमेंट नहीं है। लाइक इंदिरा गांधी कैनाल तो फेमस है ही, लेकिन उसके अलावा सर रूरल एरिया तक सप्लाई नहीं है सर। लाइक आप जैसे कह रहे थे कि घरों तक जो नल वाली बात है वो नहीं है। तो सर इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, लेकिन सर फिर भी गवर्नमेंट इतना लाइक प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में यश, इतना। ठीक है, हो गया। हाँ, राजेंद्र जी। यस का जो सवाल है ना उसी के जी, सवाल में इसका जवाब है। जी, यस ने सवाल भी पूछा और जवाब भी दे दिया। यस, वेरी गुड। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सरकारें जब जिम्मेदारी से अपने समाज को जोड़कर पारदर्शिता से काम नहीं करती हैं तब ये क्राइसिस बढ़ती जाती है, डैम भी बनते जाते हैं, लोग बेपानी भी होते जाते हैं। यदि समाज और राज
और इस देश के संत महात्मा सब लोग मिलकर पानी के लिए काम करेंगे तो राइट से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे आएगी, और राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के इंटीग्रेशन में देश पानीदार बन जाएगा। लेकिन जो जो सवाल तुमने पूछा, वो सवाल हमने जिन इलाकों में पानी का काम किया वहां वो सवाल नहीं है। वहां लोग पानीदार हैं, थोड़ी बारिश में भी पानीदार हैं। यस सर, उदयपुर सिटी ऑफ लेक जो है वो ऐसे थोड़ी ना है सर। यस सर, हाँ। आई नो सर। सर मैं बीकानेर से ही बिलोंग करता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। और अब ये अंतिम सवाल हम ले रहे हैं। गौरी, अपना सवाल पूछो। So my question is, the Yamuna River holds great significance in India, but it faces numerous challenges such as pollution. So what do you believe are the most effective solutions to restore and rejuvenate the Yamuna River? ए वेरी सिंपल सॉल्यूशन। हमारा जो यमुना में गंदा पानी जाता है, उस गंदे पानी को यमुना में ना मिलने दें। ट्रीटमेंट के बाद भी उसको हम रिसाइकल रीयूज करने के लिए डोमेस्टिक पर्पस में, एग्रीकल्चर में और ऑर्चर्ड्स में, हॉर्टिकल्चर्स में उपयोग करें, नदी में ना जाने दें। नदी में केवल ऊपर का पानी आए। आज जो हम वर्षा का क्लीन वाटर, जहां हमें ये नाइट्रोजन वाला पानी यूज किया जा सकता है, उस पानी को वहां यूज करें, और जो क्लीन वाटर है उसको नदी में फ्लो आने दें। तुम जानती हो 60% पानी हमारा हथनी कुंड पे रुक जाता है यमुना का। सारा दोनों तरफ हरियाणा कैनाल और यूपी कैनाल को दे दिया जाता है। यमुना में यमुना का पानी नहीं आता। यमुना में दिल्ली को यमुना का पानी जब मिलता है जब दिल्ली को डुबोना होता है। जब दिल्ली को डुबोना होता है तो हरियाणा भी अपनी कैनाल सिस्टम को बंद कर देता है और यूपी भी कैनाल सिस्टम को बंद कर देता है, और दोनों सरकारें कहती हैं कि इस पानी में बहुत सारा सिल्ट है, इस पानी में बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल है, और इससे हमारा कैनाल सिस्टम चौक हो जाएगा, और फिर दिल्ली को डुबो देते हैं। दोनों राज्य अपना पानी जो उनको लेना चाहिए था वो नहीं लेते। तो हमें बहन जी, यदि यमुना की चिंता है तो आप जरा अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जल्दी यमुना के लिए निकलो। जब विद्यार्थी निकलेंगे तो यमुना के लिए, यमुना की जो जरूरत है उसके सॉल्यूशन तुम खुद ढूंढ लोगी। अपने आप तुम्हें लगने लगेगा, अरे हाँ कितना सिंपल सॉल्यूशन है कि बस गंदे पानी को इसमें ना जाने दें और इसमें अच्छा पानी आए। भले ही तुम सारा पानी ना दो, कैनाल को देना दे दो थोड़ा यार, पर यार नदी का भी तो हक होता है। नदी के 3 हक होते हैं। फर्स्ट राइट होता है वाटर, क्लीन वाटर। सेकंड राइट होता है उसकी जमीन, नदी की जमीन नदी के लिए। और तीसरा राइट होता है कि नदी के किनारे के दोनों समाज, दोनों तरफ का समाज उसको प्यार से और सम्मान से उसके साथ जिए। ये 3 अधिकार हैं नदी के, और ये तीनों अधिकार हमने नदी से छीन लिए। तो हम यमुना को यमुना की जमीन का अधिकार दें, यमुना को यमुना के पानी का अधिकार दें, और यमुना में हम उसको मैला ढोने वाली मालगाड़ी ना बनाएं। आज यमुना हमारी मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है, इसलिए हम उस पर सचेत होकर काम करें। और तुम जरा अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जल्दी से इस काम के लिए निकलो थोड़ा, तब ना यमुना ठीक होगी ना। My question is that India is a country with huge population. How can population management will be effective on saving our environment? And as in a country like India, controlling population is a big issue. Yes, I agree with you fully, Dhuru. But ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, ये हमें स्लो फ्लो में करना होगा। जब हम ये अपना नियम बना लेंगे कि 2 आदमियों के बीच एक ही बच्चा होगा, तो भारत की जनसंख्या ठीक होने लगेगी। और ये केवल ये सबके लिए लागू होना चाहिए। जब सबके लिए लागू होगा तो भारत की जनसंख्या भारत को जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। इंडिया की जनसंख्या जितनी चाहिए उतनी जनसंख्या हो जाएगी। इंडिया इज ए रियल ग्रेट कंट्री। जब भी इंडिया पे संकट आया है तब इंडिया ने अपने आप को खुद खड़ा किया है और खुद बनाया है। इसलिए आप जैसे ध्रुव निर्णय के साथ खड़े होंगे
तो भारत फिर पॉल्यूशन कंट्रोल, ये पॉपुलेशन कंट्रोल में आगे बढ़ेगा। जी, इसके साथ ही हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलते हैं। राजेंद्र जी, इस कार्यक्रम में इतना ज्यादा समय देने के लिए, बावजूद इसके कि आप इतने व्यस्त हैं, और हमारे छात्रों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से कह रहा हूँ कि हम सबको बहुत मजा आया, क्योंकि आपके काम के बारे में पढ़ना और आपके मुंह से सुनना, दोनों में बहुत फर्क दिखाई दिया। हमें लगा, ये महसूस हुआ कि आप किस तरह से चीजों को कर रहे हैं और किस तरह की अप्रोच चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि सरकारों की जो नीतियां हैं वो क्या करती हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं सब समझते हैं कि साल में 11 महीने तो जमुना सूखी हुई है और गंदा पानी है, और अचानक बाढ़ आ जाती है। फिर एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसके लिए ब्लेम करती रहती है, बिना ये जाने कि जो रूट कॉज है, समस्या की असली जड़ क्या है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यंगर जनरेशन अगर इस तरह की चीजों को समझेंगे और अपने दायित्व को समझेंगी, जैसे आपने गौरी से कहा कि खुद सामने आएंगे, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं है बल्कि एक्शन है। आप का तो पूरा जीवन एक्शन का जीवन है। आपने समझा लेकिन समझ के घर नहीं बैठे, उसको कार्य रूप में परिणित किया। तो जब सारी यंगर जनरेशन समझे और समझ के एक्शन में आए, तभी हम किसी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी बातें की। अंत में जो आपने कहा नदी के हक की, जो आपने बात की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और हम सब अपने अपने हकों की बात करते हैं। आपने नदी के हक के बारे में बताया, जो सचमुच एक नए तरह का थॉट था मेरे लिए भी। आपने जो बताया कि पानी के, नदी के जो नदियां है, जो पानी है कि बाप जंगल है और माँ नदियां हैं, तो हम अपने जंगल भी काटते जा रहे हैं, अपनी नदियों को बर्बाद करते जा रहे हैं, तो फिर पानी की समस्या तो रहेगी। तो आपने बहुत ही बेसिक्स पर बात की, जो मुझे लगता है सबकी समझ में आई होगी और सबको अपने दायित्व का एहसास हुआ होगा। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, एक धन्यवाद। रिक्वेस्ट है राजन जी, जब आप दिल्ली आएंगे तो प्लीज हमारे इंस्टीट्यूट जरूर आएंगे, हम आपको इनवाइट करेंगे उसके लिए। जरूर जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे विद्यार्थियों से मिलना और बात करना सचमुच जी अच्छा लगता है। जी मैं जी। खुद और मैं खुद दीपक अपने आप को भूल जाता हूँ। जी जी, वो तो हम देख रहे हैं कि आप कितने पैशनेट होके चीजों का जवाब दे रहे हैं। और दीपक पर्वतियार जी ने, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो पाया, उन्होंने जी। एक बहुत अच्छा हमें सुझाव दिया है कि जब आप भारत आ जाएंगे, उस समय हम एक दिन आपके आश्रम में भी सब लोग आना चाहेंगे। अरे वाह, मजा आ जाएगा, कितना जी अच्छा होगा। ये तो जी तुम जल्दी से बना लो कार्यक्रम। जी जी। मैं आप मैं जी अक्टूबर में आ रहा हूँ, और मैं जी तुम्हें जी दिल्ली के पास बहुत अच्छी जगह, ज्यादा दूर नहीं है, जी एक बस एक दिन आना, एक दिन हमारे साथ रुकना और एक दिन जी घूमना और जी 2 रात हमारे साथ रुकना, तो जी बहुत मजा आएगा आपके विद्यार्थियों को। जी जी जी, हम बिल्कुल आएंगे। हाँ, जी हाँ, आइए। थैंक जी, यू वेरी मच, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.